Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MBBS platform. Today we discuss the gland. Some epithelial cells act as a gland cell. If these gland cells secrete such substance that used in the body, that substance secreted by the gland is called secretion. If the glands secrete or release those substances which discarded out of the body, that substance released by the gland is called excretion. Gland. An aggregation of the gland cells into definite structure for the purpose of secretion or excretion is called gland. Classification of the glands: exocrine and endocrine. Exocrine glands release their product directly to the epithelial surface or by the ducts. Example: salivary gland. Endocrine gland release their products into the bloodstream. Example: thyroid gland. Pancreas act as a both exocrine and endocrine gland. Exocrine gland. There are two classes of the exocrine gland on the basis of the number of cells: unicellular and multicellular exocrine gland. Unicellular exocrine gland consist of single secretory cell release their product onto the surface. Example: goblet cells scattered among non-secretory cell of the respiratory and GIT tract. If this is the goblet cells that secrete the mucus and present between the non-secretory cell. Multicellular. Multicellular exocrine gland consist of the cluster of secretory cells release their product through the duct onto the epithelial surface, and it has two parts: secreting portion and a duct system. And duct system is a non-secreting portion. Classification of exocrine gland on the basis of the morphology of duct and the secreting portion. On the basis of the morphology of duct, there is a two classes: simple gland and compound gland. Simple gland have unbranched duct system, and this is the simple gland which have unbranched duct, and a compound gland have a branched duct system, and this is the compound gland which have branched duct system. Classification of the exocrine gland on the basis of the secreting portion: tubular gland, acinar gland, tubuloacinar gland. Tubular gland, its secreting portion has the shape tubular shape. This is the tubular gland. Secreting portion has the shape tube-like, tubule-like. Acinar gland, secreting portion like the acinus or the uh, sac-like. Its old name is alveolar gland, and this is the acinar gland, which secreting portion has the shape acinus or the sac-like. Tubuloacinar gland, secreting portion neither tubule-like nor acinus-like, called tubuloacinar gland. This is the tubuloacinar gland, which secreting portion have a shape of both mm, tubule-like and acinus-like. There is a classification of simple gland on the basis of the secreting portion. Simple gland. Simple have a single duct system, single unbranched duct system. And tubular gland mean its secreting portion have a shape tubule-like. Simple tubular gland has three parts: mouth, opening to the epithelial surface, neck, narrow part of the gland, fundus, terminal secreting portion that is dilated. Classification of the simple tubular gland. Straight simple tubular gland. Secreting portion is straight and unbranched. Secreting portion is straight and unbranched. Its example is intestinal gland, crypts of lubricant. Coiled simple tubular gland. Secreting portion is coiled and convoluted. This is the coiled simple tubular gland. Its secreting portion is coiled, and its example is sweat gland. Branched simple tubular gland, secreting portion of tubule divided into two or more branches, and its example is principal and chief or zymogen gland of the stomach, endometrial gland of the uterus. And its shape is a branched simple tubular shape. The tubular gland have this shape, and its secreting portion is tubule-like and divided into two branches.
The other classification of the simple gland is on the basis of the secreting portion is simple acinar gland. Simple acinar gland. Single acinus open to the surface by very short duct. The urethral gland of the penile part of the male urethra. This is the simple acinar gland. And the simple branched acinar gland. Acinus subdivided by the partition into small compartment. Sebaceous gland of skin. सिंपल ब्रांच्ड acinar ग्लैंड को भी आगे उन्होंने दो दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक में ऐसा होता है कि ना जो उसका सेक्रेटिंग पोर्शन होता है उसकी जो एसीनस होते हैं वो सेप्टा से अलहदा हुए होते हैं, सब डिवाइड हुए होते हैं। उसमें उसकी एग्जांपल है सेबेशियस ग्लैंड ऑफ स्किन। और दूसरा ये होता है कि ना एक डक्ट होती है और डक्ट के अलोंग ना सेवरल एसीनस जो होती है वो अरेंज होती है, उसे कहते हैं। और उसकी एग्जांपल जो है माइबोबियन ग्लैंड ऑफ द आईलिड। नो वो डिस्कस द कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड ग्लैंड में ना ब्रांच डक्ट सिस्टम होता है। इसके टर्मिनल पोर्शन के बेस पे ना इसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड में क्या होता है, डक्ट सिस्टम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेक्रेटिंग पोर्शन जो होता है वो ट्यूबुलर होता है। इसमें ब्रूनर ग्लैंड ऑफ ड्यूरिनम आते हैं। फिर वो इसी जो डक्ट सिस्टम है वो ब्रांच्ड है, जो इसका सेक्रेटिंग पोर्शन है ना वो ट्यूब्यूल लाइक है। कंपाउंड एसिनर ग्लैंड, उसमें डक्ट सिस्टम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, जो सेक्रेटिंग पोर्शन होता है वो एसिनस लाइक होता है। इसमें एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज ग्लैंड आ जाता है। इसमें क्या है कि सेक्रेटिंग पोर्शन एसिनस लाइक है, जो डक्ट होती है वो ब्रांच्ड होती है। कंपाउंड ट्यूब्यूलो एसिनर ग्लैंड, इसमें डक्ट सिस्टम जो होते हैं वो हाईली ब्रांच्ड होते हैं, जो सेक्रेटिंग पोर्शन होता है वो इरेगुलरली अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स विद द न्यूमरस एसिनस आउटग्रोव्स एट द वॉल ऑफ ट्यूब्यूल। इसमें सब मैंडिबुलर स्लेवरी ग्लैंड आ जाते हैं। इसमें क्या है कि हाईली ब्रांच्ड सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा ट्यूब्यूल्स होती है और इसके अलावा एसिनस जो होती है वो अरेंज हुई होती है। Now we discuss the exocrine gland on the and its classification on the basis of the nature of secretion। इसमें क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड होते हैं, सेरस ग्लैंड होते हैं और सेरोम्यूकस ग्लैंड होते हैं। म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं वो सेक्रेट करते हैं विसेड स्लिमी कार्बोहाइड्रेट रिच सेक्रेशन कॉल्ड म्यूकस। इसमें क्या होता है, पाइलोरिक ग्लैंड ऑफ स्टमक आ जाते हैं। जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो जो म्यूकस सेल होते हैं वो म्यूसिन रिलीज करते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। जब ये रिलीज होती है तो वो हाईली हाइड्रेटेड हो जाती है, उसे म्यूकस कहते हैं। म्यूकस बन जाती है और स्प्रेड ओवर एपिथेलियल सरफेस और एक्ट एज ए लुब्रिकेटिंग जेल। सीरस ग्लैंड जो होते हैं वो थिन वाटरी प्रोटीन रिच सेक्रेशन रिलीज करते हैं, जिसे सीरस कहते हैं। वो उसकी सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है जब इंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही होती है। इसमें क्या होता है, पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड इसकी एग्जांपल है। मिक्स या सेरोम्यूकस ग्लैंड कौन से होते हैं, ग्लैंड प्रोड्यूस द बोथ सीरस एंड म्यूकस सेक्रेशंस, मतलब मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं। उसमें सेरोम्यूकस मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं, उसमें सब लिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर स्लेवरी ग्लैंड इसकी एग्जांपल है। Now we discuss the classification of the exocrine gland on the basis of the mode of secretion। जो exocrine gland होते हैं उसकी secretion जो होती है, या तो वो सिर्फ सेक्रेटरी प्रोडक्ट जो उसने वो जो सेल जो सेक्रेट करते हैं या उस पर मुश्तमिल होती है। उसमें साइटोप्लाज्म का कोई पार्ट भी नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उसकी जो सेक्रेशंस होती हैं वो उनमें सेक्रेटरी प्रोडक्ट भी होता है और होल साइटोप्लाज्म भी होता है। डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ सेक्रेशन एक्सोक्राइन ग्लैंड को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मैरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड और होलोक्राइन ग्लैंड। मैरोक्राइन ग्लैंड में क्या होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें एक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। सेक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है उनका वो सिर्फ उसमें कोई भी साइटोप्लाज्म को कंटेंट नहीं होता, उसमें सिर्फ वो सेक्रेशंस होती हैं जो कि सिर्फ ग्लैंड सेल्स रिलीज करते हैं। उसमें क्या हो गया, स्लेवरी ग्लैंड आता है, लैक्रिमल ग्लैंड आता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आता है। एपोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड कौन से होते हैं, उनका सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है उसमें थोड़ा सा एपिकल जो होता है साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो होता है। एपोक्राइन मतलब एपिकल साइटोप्लाज्म, सम एपिकल साइटोप्लाज्म होता है। उसमें क्या होता है, स्वेट ग्लैंड ऑफ एक्जिला आ जाते हैं,
and perineal area. Cerumen ceruminous gland of external ऑडिटरी मीटस जो कि वैक्स रिलीज करते हैं, सेरोमिन वैक्स वो होते हैं। और लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड भी एपोक्राइन ग्लैंड होते हैं जिसके सेक्रेटिंग प्रोडक्ट में सम एपिकल साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है। होलोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? ऑल सेलुलर कंटेंट ऑफ द ग्लैंड डिस्चार्ज एज ए सेक्रीशन। ऑल सेलुलर कंटेंट ऑफ द ग्लैंड डिस्चार्ज एज ए सेक्रीशन। उसमें क्या होता है कि जो भी साइटोप्लाज्म होता है वो सेल जो होता है वो ब्रस्ट हो जाता है और सारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेक्रेशन के तौर पे रिलीज हो जाता है। उसमें क्या होता है? सेबेशियस ग्लैंड ऑफ स्किन होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं जिसमें पेरेन्काइमा होता है और स्ट्रोमा होता है। जो पेरेन्काइमा होता है वो फंक्शनल होता है और सेक्रेटरी सेल्स उसमें होते हैं जो कि सेक्रेशन रिलीज करते हैं। जो स्ट्रोमा होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है पेरेन्काइमा को। और सेप्टा सेप्टा रखता है जो कि डिवाइड करते हैं पेरेन्काइमा को लोब्स में और सब डिवाइड करते हैं लोब्यूल्स में। ब्लड वेसल्स एंड नर्व pass along the connective tissue septa to reach these secretory elements. That's all about the exocrine gland. Jazakallah khaira.